Hello, my dear children. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana and we are doing Science Class 7. Children, this is your book and the name of your book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So, let's start a new chapter today. This is chapter number 13 of your book and the name of the chapter is Waste Water Story. So children, in this chapter we are going to learn about sewage disposal system, waste water treatment plant, alternative method of sewage disposal, better housekeeping practices. So let's start with the chapter, the dirty and polluted water that is produced in homes, industries, hospitals, offices, crop fields, etc. is known as wastewater. So जो dirty water है, जो polluted water है, जो इन सब जगहों पे produce किया जाता है, जो यहाँ पे mention है, इसे ही waste water कहते हैं. The dirty water produced in household activities like brushing. Brush करते समय हम काफी सारा पानी waste करते हैं. Washing, cleaning, cooking, etc. So these are called domestic wastewater. Means घर के अंदर जो भी हम पानी waste करते हैं, जो waste पानी produce होता है उसे हम domestic waste water कहते हैं. The water waste produced by industries, factories, hospitals, hotels, etc. are called industrial wastewater. It is commonly understood as used wastewater too. इसे जो है waste water, used wastewater के नाम से भी जाना जाता है. Realizing the problem of scarcity of water, the General Assembly of the United Nations declared the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life. What is sewage? The wastewater from different sources such as industries, houses, offices, etc. is collectively known as sewage. So जो भी waste निकलता है इन सब जगहों से उन्हें हम sewage भी कहते हैं. Rain water that runs over soil, pesticides, facial matter, polythene and other wastes are also added to the sewage. So जब बारिश का पानी मिट्टी से या पेस्टिसाइड से या फेशियल मैटर से या पॉलीथीन या कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट से बहता हुआ आता है उसे और सीवेज में आके मिल जाता है. It also contains various contaminants that make it unfit for consumption. इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी को impure बनाती है पीने के लिए. All type of waste plus dissolved substances plus microbes plus facial matter etc. means contaminants जो सीवेज बन जाते एक लिक्विड वेस्ट. कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन सीवेज. अब सीवेज में क्या क्या कंटामिनेंट्स होते हैं? द डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज दैट मेक फ्रेश वाटर अनसुटेबल फॉर ड्रिंकिंग आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स. सो वो सब चीजें जो फ्रेश वाटर में मिल के उसे जो है अनसुटेबल कर देते हैं, पीने का लायक वो पानी नहीं रह जाता है, तो ऐसी चीजों को हम कंटामिनेंट्स कहते हैं. कंटामिनेंट्स आर एडेड टू वाटर थ्रू मेनी सोर्सेज. ये जो कंटामिनेंट्स हैं उसे पानी में मिलाया जाता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं उसके थ्रू एंड दस मे वेरी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल मैटर. और ये अपने जो भी फिजिकल और केमिकल मैटर है उसमें ये चेंज आउट होते हैं. द फॉलोइंग कंटामिनेंट्स माइट बी प्रेजेंट इन वाटर. सो ये अलग अलग कंटामिनेंट्स हैं जो पानी में प्रेजेंट हैं. ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, हेयर, grass, food, plant materials, humus, urine, oil, chemicals, pesticides, vegetable and animal waste, etc. So, organic particles क्या क्या है? ये जो चीजें यहाँ लिखी गई जैसे grass हो गया, food, plant material हो गया, humus हो गया, urine हो गया, oil, chemical, ये सारी चीजें क्या करती हैं? मिलके organic particles बनते हैं. Now, what are inorganic particles? इनऑर्गेनिक पार्टिकल है जैसे सैंड हो गया, ग्रेट, मेटल, सिरामिक, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा.
सॉल्युबल्स क्या हैं? जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया, शुगर, प्रोटीन, ड्रग्स एक्सेट्रा। अब सॉल्युबल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स क्या हैं? जैसे कि अमोनिया, रोड सॉल्ट, डिटर्जेंट, सोप, सी सॉल्ट, साइनाइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड एक्सेट्रा। ये सब जो है सॉल्युबल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है। अब इनसॉल्युबल मटेरियल क्या है? जो पानी में घुलते नहीं है, like metal grade, sand, plastic, paper, etc. So these are insoluble materials. Pathogenic क्या है? Bacteria, virus and other microorganisms that cause thyroid, cholera, dysentery, etc. So ये सारी चीजें बैक्टीरिया जो मिलके ये सारी बीमारियां को प्रोड्यूस करती हैं, ये हम कहते हैं पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, many gases, emulsion like paints and toxins like pesticides and herbicides. So ये जो है, ये चीजें जो है गैसेस हैं, एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआस, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, ये सब भी जो है एक इसका पार्ट है। व्हाई वी नीड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम? हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की क्या जरूरत है? प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर इज वेरी एसेंशियल। वेस्ट वाटर जो है प्रॉपरली ड्रेन हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, द सीवेज फ्रॉम ड्रेन गेट कलेक्टेड। अब अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा तो जो भी सीवेज है ड्रेन से वो कलेक्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पूल्स एंड स्टैग्नेंट वाटर। पूल्स और स्टैग्नेंट वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। स्टैग्नेंट वाटर इज आइडियल प्लेस फॉर डिजीज स्प्रेडिंग फ्लाइज। ये जो स्टैग्नेंट मीन्स रुका हुआ जो गंदा पानी है, यहाँ पे जो बहुत सारी डिजीज स्प्रेडिंग फ्लाइज मीन्स बीमारी को फैलाने वाले फ्लाइज, मॉस्किटोज, बैक्टीरिया, वायरस जो है यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, यहाँ पैदा हो जाते हैं, ब्रीड करते हैं। मोर मेनी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्टैग्नेंट वाटर। सो कई सारे हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं इस स्टैग्नेंट वाटर में। दैट नॉट ओनली पॉल्यूट्स द एयर ओवर द एरिया बट आल्सो गेट्स अ फाउल स्मेल। सो ना तो ये सिर्फ इस एरिया के को जो है डर्टी करती है, पॉल्यूट करती है, बल्कि यहाँ पे ये बहुत ही फाउल स्मेल मीन्स गंदी स्मेल भी देती हैं। Diseases like diarrhea, cholera, malaria, dengue and typhoid break out due to organisms produced in stagnant water. अब ऐसे पानी में क्या होता है? बहुत सारे डिजीजेस ग्रो करती हैं, जैसे कि डायरिया, कोलरा हो गया, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड। Even if there is a proper drainage system, it gets blocked by polythene bags. अगर भले ही एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, फिर भी क्या होता है कि ये सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है पॉलीथीन के बैग से। ओपन एंड कवर ड्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इल इफेक्ट्स ऑफ स्टैंडिंग वाटर। अब जो ओपन या फिर कवर ड्रेनेज सिस्टम हो तो उसकी वजह से भी जो स्टैंडिंग वाटर है ये इल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। मेनी पीपल स्पेशली इन स्लम एरियाज डेफिकेट इन द ओपन। अब जो है लोग जो है जो यहाँ पे स्लम एरियाज में रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, वो क्या करते हैं? खुली जगहों पे जाते हैं और डेफिकेट करते हैं। All this excreta also gets mixed with water and spread germs. अब ये सारा जो excreta है, जो सारी गंदगी है, ये पानी के साथ मिल जाता है और germs को spread करता है। All these factories also affect groundwater by polluting it. ये जो भी factories हैं वो groundwater को affect करती हैं, उन्हें pollute करती हैं। That is why a proper disposal system of water, waste water is necessary. इसलिए वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now children, you have to do these questions on your own. What is sewage disposal system? अब sewage disposal system क्या है? Sewage system is a network of underground pipelines through which sewage is carried from the point of its production to the point of its treatment. अब जो sewage system है ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है, उनके थ्रू चलता है, जिसमें जो ये पॉइंट होता है जहाँ पे चीजें जो है जहाँ से प्रोड्यूस की जाती है वो अपने ट्रीटमेंट पॉइंट तक जाती है। इन द सीवेज सिस्टम देयर आर टू सेट्स ऑफ पाइप्स, वन फॉर ब्रिंगिंग क्लीन वाटर टू होम्स, स्लॉटर हाउसेस, टैनरीज एंड ऑफिस एंड फैक्ट्रीज एंड अनदर टू टेक अवे वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज प्लेसेस। सो अब इन जगहों पे दो पाइपलाइंस होती हैं, एक जो क्लीन वाटर को कैरी करता है इन सारी प्लेसेस पे, दूसरा होता है दूसरी जो पाइपलाइन है वो वेस्ट वाटर को ले जाती है इन जगहों से।
The pipes carrying waste water are called sewers. और वो पाइप जिसके अंदर ये वेस्ट वाटर होता है उसे सीवर कहा जाता है. These pipes are made up of either cast iron or PVC, polyvinyl chloride. So ये जो पाइपलाइन है या तो ये कास्ट आयरन से बनते हैं या फिर PVC मीन्स polyvinyl chloride से. These pipes are connected to main sewer. और ये जो पाइप है ये मेन सीवर से कनेक्टेड होते हैं. At the junction of sewer, there where direction is to be changed, main holes are formed. और जो डायरेक्शन होता है इन सीवर्स का वहां पे मेन होल्स बने होते हैं. A sewer disposal system you can see here. There are various houses and the water is carried in this way. The eucalyptus tree absorbs surplus waste water quickly and releases pure water. अब जो यूकेलिप्टस का ट्री होता है ये वेस्ट वाटर को क्विकली अब्सॉर्ब कर लेता है और प्योर वाटर को रिलीज करता है, वाटर वेपर्स को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर. हेंस यूकेलिप्टस ट्री शुड बी प्लांटेड अलोंग द सीवेज पॉन्ड्स. सो सीवेज पॉन्ड्स के आसपास ये यूकेलिप्टस के ट्रीज हमें ग्रो करने चाहिए. वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज water has to be treated before it is let off into water bodies like river. So sewage water को अच्छे से treat करना चाहिए इन्हें water bodies में छोड़ने से पहले. For this purpose or for this process, sewage water is first treated in the waste water treatment plant. So इसके लिए जो sewage water है उसे जो है water waste treatment plant में पहले जो है clean किया जाता है. Water waste treatment includes removing physical, chemical and biological impurities from the wastewater. So जो भी है waste water इसमें से जो भी physical, chemical या फिर biological impurities है इन्हें पहले हटाया जाता है. After treatment, purified water is changed, discharged into water bodies. और जब इस water को clean कर लिया जाता है treatment के बाद इसे जो है water bodies में छोड़ दिया जाता है. Solid part of the sewage removed is used as fertilizer. So जो भी solid part निकाला जाता है इन सीवेज से उसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है. And remaining parts are used to produce biogas. और जो बचा हुआ पार्ट है उसे बायोगैस बनाने के लिए यूज किया जाता है. That is used as a fuel. इसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. The treatment is done in the following way. अब क्या क्या तरीके हैं जिससे ट्रीटमेंट किया जाता है. Bigger solid impurities like plastic bags, cans, sticks, ropes, etc. are removed. First of all, by passing the waste water through bar screens. So bar screen से इस waste water को पास किया जाता है जिसमें से ये सारी चीजें रिमूव की जाती हैं. Remaining solid impurities are made to pass through grinders. जो बची हुई जो solid impurities उन्हें grinder से pass on किया जाता है. The grinder crushes the solid impurities to very fine size. जो grinder है वो क्या करता है इन सारी impurities को fine size में crush कर लेता है. This prevents blocking up of plant. जिसकी वजह से जो plant है वो block नहीं होता. The waste water is now allowed to enter a grit chamber. अब ये waste water grit chamber में जाता है. Here speed of water is reduced so that sand, silt and gravel settle down. अब यहाँ पे water की speed को कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो sand है या जो silt है या जो gravel है वो नीचे बैठ सके. ये you can see a sewage treatment plant is in front of you. जो भी waste water है उसे पहले बार स्क्रीन से जाता है जहाँ पे लार्ज रबिश पीसेस निकलते हैं. फिर ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में जाते हैं जहाँ ग्रिट और सैंड जो है यहाँ पे हट जाते हैं. अब आगे फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जहाँ पे स्लज जो है जो भी सॉलिड वेस्ट है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है और ये स्लज जो है नीचे आके स्लज इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है जहाँ पे टैंक डिजिस्टर होता है. अभी क्या करता है जो बायोगैस होता है उसे जो है यूज करता है एज अ फ्यूल और जो स्लज है उसे मैन्योर के लिए यूज करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं. दूसरा अब आगे जो है एरिएशन टैंक है जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आती है इसके अंदर. फिर जो है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जहाँ पे जो भी एक्टिवेटेड स्लज रहता है वो आपको वापस स्लज टैंक में मिलती है और अब जो बचा हुआ क्लीन वाटर है उसे रिवर में हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं. So this is the picture of a sewage treatment plant. Then this water passes to the clarifier tank or first settling tank. It is a sedimentation tank which is shaped like a funnel. Organic matter passes through the funnel and settles down at the bottom. This is called sludge. This is removed by scrappers.
Lightweight materials like oil and grease float on the surface. These are removed with the help of skimmers. Now the water is called clarified water. So अब यहाँ पे clarified टैंक में ये जो पानी है वो पास ऑन किया जाता है, जहाँ पे जो ये टैंक है ये फनल के शेप का होता है, जहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो नीचे जाके बैठ जाता है, इसे स्लज कहा जाता है। और बाकी दिस इज रिमूव बाय स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स इसे रिमूव करते हैं। जो भी लाइट वेट मटेरियल होता है जैसे कि ऑयल हो गया या ग्रीस हो गया वो पानी पे फ्लोट करता है, उसे स्टीमर से हटाया जाता है और अब इस वाटर को क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। अब जो स्लज है दैट गेट्स रिमूव्ड इन द क्लैरिफाइड इज ट्रांसफर्ड टू द डाइजेशन टैंक। अब ये जो स्लज है उसे डाइजेशन टैंक में भेजा जाता है। दिस कंटेन्स एनाएरोबिक बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज द स्लज टू बायोगैस। यहाँ पे एनाएरोबिक बैक्टीरिया है जो इस स्लज को बायोगैस डिकम्पोज करता है ताकि इसमें से बायोगैस रिलीज हो सके। द बायोगैस इज रिच इन मीथेन गैस एंड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ये जो बायोगैस है इसमें बहुत सारा मीथेन गैस होता है जो फ्यूल का काम करता है। एंड द डाइजेस्टिव स्लज इज ड्राइड एंड यूज्ड एज मैन्यूर। और जो डाइजेस्टिव स्लज है उसे सुखा लिया जाता है और मैन्यूर के रूप में यूज किया जाता है। एरेशन टैंक इज द नेक्स्ट टू द प्रोसेस। अब इसके जस्ट बगल में एरिएशन टैंक है। Here air is passed through the clarified water। जो भी clarified water है इससे जो एयर को पास किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया thus grow in the water। अब इस वाटर में जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो करने लगते हैं एंड कंज्यूम द रिमेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। और जो बचे हुए ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उसे खा जाते हैं। नाउ फाइनली द वाटर इज पास थ्रू द डिसइंफेक्टेंट टैंक। सो अब ये जो वाटर है इसे डिसइंफेक्टेंट टैंक्स में जो है भेजा जाता है, वेयर डिसइंफेक्टेंट्स लाइक क्लोरीन, पोटेशियम, परमैंगनेट एंड ओजोन हेल्प टू किल द जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट वाटर। सो ये जो है ये सारी चीजें जो है वाटर के अंदर जो भी जर्म्स है उसे मार देते हैं और वाटर को क्लीन कर देते हैं। द एरेटेड वाटर वेस्ट वाटर देन फ्लोज टू द फाइनल सेटलिंग टैंक। सो ये जो एरेटेड वेस्ट वाटर है ये अब सेटलिंग टैंक तक चला जाता है। हियर द हेवी पार्टिकल्स एंड अदर सॉलिड्स सेटल एट द बॉटम। यहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स हैं और जो दूसरे सॉलिड्स हैं वो बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। सम ऑफ दिस स्लज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज इज रीसर्कुलेटेड बैक टू द एरेशन टैंक। इसमें से जो कुछ स्लज है वो वापस से एरेशन टैंक में जाता है। Thus the purified water is released to water bodies such as river and water distribution system। अब जो भी प्यूरिफाइड वाटर है वो वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। About 90% of the wastewater is in developing countries is released in water bodies without any treatment। So जो 90% वेस्ट वाटर है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बिना ट्रीटमेंट के ही जो है वाटर बॉडीज में मिला दिया जाता है। दिस हैज इंक्रीज द स्कैसिटी ऑफ अवेलेबल फ्रेश वाटर टू द ग्रेट एक्सटेंट। और इसकी वजह से फ्रेश वाटर जो काफी कम हो चुका है। चिल्ड्रन डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन, यू हैव टू डू दिस। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। सो सीवेज डिस्पोजल के कुछ अलग मेथड्स भी हैं। लेट्स रीड। इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन स्मॉल टाउन्स। सो स्मॉल टाउन्स में हम ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, विलेजेस में नहीं कर सकते या स्लम्स में नहीं कर सकते। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप। इसे सेट करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इन सच कंडीशन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल आर यूज्ड। सो ऐसी जगहों पे दूसरे सैनिटेशन और सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम यूज किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम एंड दिस में इंक्लूड सेप्टिक टैंक, वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स एंड बायोगैस प्लांट। अब सेप्टिक टैंक क्या होता है, लेट्स सी। सेप्टिक टैंक कंटेन्स एनाएरोबिक बैक्टीरिया इन इट। सो ये जो सेप्टिक टैंक है इसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है। सीवेज गोज to the septic tank where it is decomposed by these bacteria। So sewage जो है इन septic tanks में जाता है जहाँ पे decomposed bacteria होते हैं। The septic tank traps greases and a large solids and its remaining waste percolates downward. The soil filters out some potential pollutants and soil bacteria decomposes biodegradable materials। सो ये जो सेप्टिक टैंक है ये क्या करता है, ट्रैप्स ग्रीसेस एंड लार्ज सॉलिड्स। ये लार्ज सॉलिड्स को
ट्रैप कर लेता है एंड इट्स रिमेनिंग वेस्ट, जो भी बचा कुचा वेस्ट है उसे ट्रैप करता है और बाकी चीजें जो है पर्कुलेट्स डाउन, नीचे चली आती है. द सॉइल फिल्टर्स आउट सम पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स. जो सॉइल है वो क्या करता है, फिल्टर करता है कुछ पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स को. एंड सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और जो सॉइल बैक्टीरिया है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिकम्पोज कर देता है. Here you can see the picture of septic tank system used for disposal of domestic sewage and water waste in rural and suburban areas. Next is vermicomposting toilets. These toilets convert human excreta into vermicompost manure with the help of worms. So अब ये vermicompost क्या करता है, जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है उसे वर्म्स की मदद से वर्मीकम्पोस्ट मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट इज बायोगैस प्लांट्स. एन ऑल्टरनेट मेथड इज आल्सो सीवेज टू गो टू द बायोगैस प्लांट. सो एक दूसरा मेथड है, ये जो सीवेज है डायरेक्टली बायोगैस प्लांट्स तक जाए, डायरेक्टली वेयर सीवेज गेट्स नॉट ओनली proper disposal but a useful fuel is also obtained as biogas. So यहाँ पे ना के सिर्फ जो है सीवेज को डिस्पोज किया था बट एक यूजफुल फ्यूल भी निकलता है जिसे हम बायोगैस कहते हैं. ड्यूरिंग लार्ज गैदरिंग्स इन फेयर्स मेलास टेम्परेरी टॉयलेट्स आर मेड फॉर पब्लिक यूज. सो बड़े बड़े गैदरिंग्स जब होते हैं, फेयर्स होते हैं, मेलास होते हैं, तो टेम्परेरी टॉयलेट्स बनाए जाते हैं लोगों के लिए. Such toilets do not have sewage connection. ऐसे टॉयलेट्स में सीवेज कनेक्शन नहीं होता है. Also these toilets, सुलभ toilets are used for people who do not have toilets. और ऐसे टॉयलेट्स हैं उन लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं जिनके घर में टॉयलेट नहीं है. In fact, such methods should be encouraged so that sewage will be disposed of in an environment-friendly manner. So ऐसे methods को encourage करना चाहिए जो सीवेज को डिस्पोज ऑफ करते हैं बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर. On 2nd October 2014, the Indian Prime Minister Narendra Modi launched the Swachh Bharat Abhiyan and to make citizens aware about the needs of cleanliness. Better housekeeping practices. अब क्या क्या practices हमें अपनानी चाहिए? Sometimes our carelessness makes the drains choked and creates water stagnant. So कई बार हम बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे ड्रेन्स है वो चोक हो जाते हैं और पानी जो है वो खराब हो जाता है. To avoid this, we should follow some good housekeeping practices. Food items should not be thrown into sinks or drains. जो भी फूड है उसे हम सिंक या फिर ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए. They may clog the pipes. ये पाइप्स को क्लॉग कर सकते हैं. They should be directly disposed in dustbin. इन्हें डायरेक्टली डस्टबिन में डालना चाहिए. We should also avoid throwing solid waste like peels of vegetables and fruits, tea leaves and cotton, sanitary napkins, small objects etc. in kitchen sinks, toilets and drains. So ऐसी जगहों पे हमें जो है ये सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए. They reduce the process of degradation by hindering the flow of oxygen. ये क्या करती है, ये चीजें ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर देती है जिससे डिग्रेडेशन कम हो जाता है. पॉलीथीन्स आर द बिगेस्ट हजार्ड टू द वाटर ड्रेनेज. पॉलीथीन जो बहुत बड़ा कारण है वाटर ड्रेनेज का. ये बहुत बड़ा हजार्ड है वाटर ड्रेनेज के लिए. सो वी शुड अवॉइड यूजिंग पॉलीथीन्स. हमें पॉलीथीन्स को अवॉइड करना चाहिए यूज करने से. ऑयल्स एंड ग्रीस हार्डन्स आफ्टर सम टाइम. ऑयल और ग्रीस जो है थोड़ी देर बाद जो है हार्ड हो जाता है. So if these are disposed to the drains directly, they deposit on the wall of sewer. अगर इन्हें हम ड्रेन में डायरेक्टली डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो उनके वॉल्स है वहां पे जाके चिपक जाएंगे. And block the drainage pipe. और ड्रेनेज पाइप को ये ब्लॉक कर सकते हैं. These should be disposed in dustbin. इन्हें डस्टबिन में डालना चाहिए. Chemicals and toxic materials like medicines, paints, pesticides, insecticides, kerosene, etc. should not be disposed of in sink. So इन चीजों को भी सिंक और ड्रेन में हमें नहीं डालना चाहिए. As they kill the microorganisms that help to purify water by decomposition. क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं जो वाटर को प्यूरिफाई दैट हेल्प्स टू प्यूरिफाई वाटर डिकम्पोजिशन. वाटर डिकम्पोजिशन को हेल्प करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये मार देते हैं. It is estimated that more than 3.4 million people die of waterborne diseases.
ऐसा कहा जाता है कि तो 3.4 मिलियन लोग हैं वो वाटरबोर्न डिजीजेस से मारे जा चुके हैं हर साल मरते हैं ऐसे लोग. So some of these are cholera, typhoid, dysentery, hepatitis and polio. So इनमें से कुछ diseases के नेम यहाँ पे दिए गए हैं. Now children, let's recall what we have learned in this chapter. The water that runs down the drain from houses, factories, offices, etc. is called wastewater or sewage. Many contaminants like excreta, metals, minerals, paint, soil, inorganics and organic matter, gases, toxins, etc. are present in sewage. Proper sanitation and drainage system is required to avoid creating conditions favorable for germs to breed. Sewage system of a network of pipes that carries wastewater from the point of its origin to the point of its treatment. Water is purified in wastewater treatment plants, and sludge collected during the process is used to make biogas fuel by the process of digestion by bacteria. We should adopt better housekeeping methods to prevent the drainage from choking. We should not throw solid garbage, leftover food, toxins and chemicals, plastic bags, etc. in the sink, toilet and drainage. Now let's answer these questions. What name is given to the impurities present in wastewater? Wastewater में जो भी impurities है उन्हें क्या नाम दिया गया है? Write it here. Name two organisms that breed in stagnant water. So दो organisms के name लिखने हैं जो stagnant water में breed करते हैं. You can say mosquitoes or flies. What are the sewers made up of? Sewers किस चीज से बनते हैं? What is the last step in the water waste treatment plant? Name the on-site sewage disposal system and why is stagnant water harmful? Stagnant water जो है harmful क्यों है? Because it has a lot of diseases in it. Mosquitoes can breed there and different diseases can be caused because of this stagnant water. What is a sewage system? How are big solid impurities removed from wastewater? So जो big solid impurities हैं उसे wastewater में से कैसे remove किया जाता है? Why should we not dispose tea leaves in kitchen sinks? So we should not dispose of tea leaves in kitchen sink because it may clog the drain or the kitchen sinks and it may avoid the waste from getting disposed of or decomposed. So children, with this we have completed the chapter. I hope that you have understood the chapter very well and you have to complete the exercises that is given to you as homework. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.